Hello everyone, good morning. Welcome back in the topic AP. As we have seen and as we have started working on AN, we are actually going to continue in this session also working on AN. We have got only two concepts. One is about AN and other one is about SN. Yesterday only I got to know that you're using in the school something like a word TN in place of AN. Okay, so this is the word, this is the symbol we use in CBSE books, that is NCRT books. So when you open your book you will find this symbol, and if you open HSC books, sorry, SSC books, that is Maharashtra State Board, you will find the word TN, but both the meaning is same. Okay, so AN ho ya TN ho, the meaning is same, remember that. So anyway, we follow as per the CBSE book. Chalo. So what is AN? AN is equals to A plus n minus 1 into D. So in the last question, in the last session, we have solved some question based on n value. Okay, so it was asked to find the n value or some other question, different question, and we continue the same now in this session as well. So let's start question number 10. We have completed question number 9 and now we are going to complete, or we are going to start with question number 10. So 10 question says that we have got to find out n value if 24, 20, 16 dash 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 and minus 11. Give me just 1 minute. Okay, and minus 11, minus 8 and minus 5 dash 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 will have nth term same. Okay, nth term का मतलब होता है an, यही an, nth term मतलब an. So that means I have to find out an using this particular term. तो इसका a होगा, I hope you understand, 24, and d होगा, tell me, 20 minus 24. Remember that, a2 minus 7. Never go for a1 minus a2. a2 minus 7 properly याद रखो इसको. It is minus 4. Next one, a is equals to, for the second one is minus 11 and d is equals to minus 8 minus of minus 11. Make sure that you understand this, and the answer is 8 plus minus 8 plus 11, and that is 3. तो ये रहा हमारा d, ये रहा हमारा a, ये रहा हमारा d, ये हमारा a. So I can find an in this case. It will be equal to an is equals to a plus n minus 1 into d, 24 plus n minus 1, because I don't have n value, into minus 4. There is nothing at this side of the equal to sign, matlab left hand side of the equal to sign. Therefore, there is no chance of shifting the things the other side. And of course, I have to find out an. तो an find करके रखते हैं. You will be asking how can we find n value नहीं है. कुछ नहीं करना, आपको multiply करना है. 24 minus 4n plus 4. तो 4 से मैंने multiply कर दिया. ठीक है. तो it will be 28 minus 4n, and इसको बोलते हैं general term. What is called as a general term. हमने इसको इससे पहले भी यूज़ किया इन द वेरी बिगिनिंग सेशन ऑफ एपी. हमने जनरल टर्म इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है. दैट मीन्स इफ आई पुट वैल्यू ऑफ एन एज 1 हियर आई गेट द फर्स्ट टर्म. इफ आई पुट वैल्यू ऑफ एन एज 2 आई गेट द सेकंड टर्म. दैट मीन्स दिस बेसिकली दिस एक्सप्रेशन गिव्स अस एनी टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी. देयरफॉर वी कॉल दिस एज अ जनरल टर्म. Similar general term I'll find for the second AP as well, that is an is equals to minus 11 plus n minus 1, because that is not given to me, into 3. I'll be multiplying it by 3. It will be plus 3n minus 3. It is going to be minus 14 plus 3n, or 3n minus 14, anyhow we can use it. Now this is called as a general term of the second AP, the new AP, right? What is given here, what is said कि nth term is same. देखो, the nth term is same, then you have to find the value of nth term is same. मतलब यही तो है ना nth term. an मतलब nth term, वो same है. same है मतलब क्या, equal है. okay, that means what, 28 minus 4n is equals to minus 14 plus 3n. इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 14 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो 28 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 3n प्लस 4n. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा 7n, एंड 28 8 प्लस 4 इज 12, 2 1 कैरी एंड 42. तो व्हाट विल बी n इज इक्वल्स टू शिफ्टिंग 7 दिस साइड, 7 6 42. तो ये रहा आपका n इज इक्वल टू 6 आंसर. दैट मीन्स फॉर द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस एपी एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी इक्वल, विल बी सेम. डिड यू अंडरस्टैंड इट? ईजी है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है, राइट? इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. तो मार्क इट एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव हेड. इसको मैं इरेज कर देता हूँ. ठीक है. फाइंड हाउ मेनी नंबर्स आर between 1 to 200 which are divisible by 3 as well as 5.
3 एंड 5, मतलब 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। तो व्हाट डू यू थिंक कि 3 से डिविजिबल एंड 5 से डिविजिबल ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं? 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है। एग्जैक्टली, इट विल बी डिविजिबल ऑफ एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 कितना आता है? 15। सो द क्वेश्चन, इफ आई से दैट हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, और इफ आई से हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 15, दोनों मीनिंग इज सेम। ठीक है, दैट मीन्स बेसिकली आई एम सपोज टू फाइंड आउट द नंबर्स इन बिटवीन 1 to 200 डिविजिबल बाय 15। ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। 15 से डिविजिबल क्वेश्चन 1 to 15, सॉरी 1 to 200। तो 1 नहीं लेना है, 200 भी नहीं लेना है। तो 15 इज द फर्स्ट नंबर, 30 इज द सेकंड नंबर। ऐड करने के बाद इसमें ऐड किया तो 45 एंड डैश डैश डैश। 200 के पहला वाला नंबर जो 15 से डिविजिबल हो, कुछ नहीं करना, 200 को 15 से डिवाइड करो। तो 15 सा भी तो डिविजिबिलिटी आपको पता नहीं होगी, या फिर डिवाइड कर नहीं सकते, मे बी आपको पता नहीं है टेबल क्या है 15 का। तो 15 वन जा तो कर सकते हो, 15 वन जा तो ये होगा 50, 50 3 जा, ये देखो यहाँ पे आ गया है ना, 3 जा 45, 5 लेफ्ट। सो 200 माइनस 5 195, तो लास्ट नंबर वुड बी 195। आप एन फाइंड करो एंड द आंसर इज डन। सेम इज द 12th वन, यू कैन डू इट ऑल बाई योर सेल्फ, कर सकते हो ना। तो 2 एंड 5, मतलब एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 क्या होगा? 10। तो हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10 ऐसे पूछा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो सकती है। तो एलसीएम ऑफ 2, 5 विल बी इक्वल टू 10। तो आपको 10 का डिविजिबल चाहिए, तो 10 इज द फर्स्ट, 20 इज द सेकंड, 30 इज द थर्ड, डैश डैश डैश। अभी लास्ट वाला क्या होगा? 200 होगा। यहाँ पे हो गई गलती आपकी। तो ये क्या होगा? बिटवीन पूछा है, तो इसलिए ये होना चाहिए 190। याद रखो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बिल्कुल भी भूल जाते हैं बच्चे, एग्जाम में याद नहीं रहता ये चीज़। ठीक है, तो मेक श्योर दैट कि एंड नंबर्स, फाइनल नंबर्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। ओके, डोंट टेक दोज नंबर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन। ओके, ये हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इज 84 टर्म ऑफ 3 7 11, मतलब एपी दिया हुआ है 3 7 11 डैश डैश डैश। ऐसे अगर मैं ऐड करता जाऊंगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 84 आएगा क्या, या फिर नहीं आएगा? आ भी सकता है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे 10 ये नंबर इस एपी में है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैसे ही पूछा है कि 84 इज इट अवेलेबल इन दिस एपी और नो। अभी ये जानने के लिए, टू फाइंड आउट दैट वेदर इट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर एपी और नो, आई हैव टू गो ऑन एडिंग दिस। एंड 84 का बड़ा नंबर आ गया तो वहाँ पे रुक जाना है, उससे पहले 84 आता है कि देखना है, नहीं आता है तो बोलना है नहीं आता है। नो, दैट वुड बी रियली नॉट गुड मेथड, है ना। इट विल बी इलिटरेट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। हमें एक लिटरेट मेथड से जाना है, अच्छे मेथड से जाना है। तो व्हाट कैन वी डू हियर? तो लेट 84 बी द टर्म, एक टर्म है ऐसे कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए एन विल बी इक्वल टू 84, ए विल बी इक्वल टू 3, मुझे पता है, डी विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3 4, राइट। अभी ए एन का फॉर्मूला सेट कर सकता हूँ मैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज गिवन 84, ए इज 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। कैन वी फाइंड एन वैल्यू आउट ऑफ दिस ऑल? आई कैन इजिली फाइंड आउट। 3 को इधर शिफ्ट किया 81 होगा, है ना। 84 माइनस 3, तो इट विल बी एन माइनस 4 इंटू 4। तो 4 को भी शिफ्ट कर दिया, तो 81 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो कितना होगा ये? पता नहीं, देखते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 4 2 ज़ा एंड 4 5 ज़ा, इट विल बी एन माइनस 1। एन क्या आएगा देखो, एन इज इक्वल टू 21.25। ठीक है, अभी यहाँ पे लॉजिक देखो, एन मेरा आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय एन? एन इज अ नंबर ऑफ टर्म, एंड रिमेंबर दैट नंबर ऑफ टर्म नेवर कैन बी इन डेसिमल और इन फ्रैक्शन और इन नेगेटिव। नंबर ऑफ टर्म है ना, मतलब मेरे क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं? तो कैन आई से दैट 20.5 स्टूडेंट्स है मेरे क्लास में, या फिर 21.25 स्टूडेंट्स है मेरे क्लास में? बिल्कुल आई कैन नॉट से दैट। दैट मीन्स वॉट? हियर वन शुड नो दैट कि एन इज सपोज टू बी ओनली नेचुरल नंबर, as n is not natural, 84 is not a term। मतलब क्या हो सकता है इसका? मतलब एक ऐसी टर्म आएगी जो होगी
20th टर्म, दूसरी टर्म होगी 21st टर्म, तीसरी टर्म होगी 22nd टर्म। ठीक है, तो ये कुछ तो टर्म होगी इन दिस एपी, ये कुछ तो टर्म होगी, एंड इन दोनों के बीच में होगा 84 नंबर। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट बेसिकली अ नंबर विच इज़ ऑफ द एपी, बट इन दोनों के बीच में वो लाई करेगा। दैट्स द रीजन वी आर गेटिंग n एज 21.25। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि वाई द नंबर n इज कमिंग इन डेसिमल। ओके, तो दैट मीन्स दिस 84 इज इन बिटवीन 21 एंड 22 नंबर, और 21st एंड 22nd टर्म। ठीक है, हाँ, विच इज़ दैट टर्म, दैट इज ऑफकोर्स यू कैन फाइंड आउट इफ यू विश टू सी दैट, बट ऑफकोर्स ये तो समझ में आ गया, इजंट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, देखो, इज जीरो टर्म ऑफ दिस एपी, जीरो टर्म है क्या इस एपी का? मतलब क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू जीरो करना है, ए इज इक्वल टू 120, डी इज इक्वल टू देखो 116 माइनस 120, तो निगेटिव में आएगा, इट इज -4। है क्या टर्म ए पी का, देखते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन जीरो है, हो सकता है ना किसी ए पी का एक टर्म जीरो भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ए कितना आएगा यहाँ पे, ए आएगा 120 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा -4, 120 इज -120, n minus 1 into -4. So do we have here -120 divided by -4 is equals to n minus 1, right? So this get cancelled, this negative that is, it becomes plus. So 4 ones are 4 3s are 12 and 0 n minus 1. So we have n is equals to 31. अभी 31 is a natural number. It is a natural number. Therefore, 0 is a term of AP. समझ में आ गया? मतलब नेचुरल नंबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, टर्म ऑफ एपी हो जाएगा। नेचुरल नंबर नहीं आया तो इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी हो गया। दैट्स इट, दैट्स इट, क्लियर, सिंपल सी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन 15th वन, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी। बहुत मस्त मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब आपको भी इंटरेस्ट आ जाएगा जब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये लॉजिक जो है ना वो बहुत अच्छा है। देखो, आपको पहली वाली नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है, तो मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। देखो 120 है, 116 है, 112 है, ऐसे करते करते इजंट इट ये रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा रिड्यूस हो जाए कि एक टर्म ऐसे -1 या फिर -3 ऐसे आ जाए। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, नॉट नेसेसरी कि -1 ही आ जाए, बट कोई भी एक नेगेटिव टर्म आ सकता है। तो ये पहली वाली जो नेगेटिव टर्म है ये आपको फाइंड करनी है, दूसरी वाली मतलब उसके बाद नहीं, उसके बाद तो बहुत सारे नेगेटिव टर्म होंगे। तो इजंट इट वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सी आएगी नेगेटिव टर्म, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और if I see the question in the first in the first glance, if you feel like अरे बाप रे ये क्या आ गया रे क्वेश्चन, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आता है इस क्वेश्चन में। देखो 120, 116 एंड 112 इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे 0 तक, मतलब एक टर्म है 0, हो सकता है पॉसिबली। सो लेट 0 बी द टर्म ऑफ द एपी, एपी की एक टर्म ऐसे कंसिडर करते हैं। 0 के नेक्स्ट वाली जो आएगी वो क्या आएगी बताओ जरा। एग्जैक्टली नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो रिड्यूस होती जा रही है। ओके, उसके नेक्स्ट वाली तो 100% नेगेटिव आएगी ना। तो इफ आई कुड फाइंड 0 इज इमेजिन 22nd टर्म, तो कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, 23rd टर्म नेगेटिव होगी, उसके नेक्स्ट वाली टर्म नेगेटिव होगी। यही है लॉजिक। तो लेट्स फाइंड आउट दैट मीन्स ए एन इज इक्वल टू 0 आ गया, ए इज इक्वल टू 120 आ गया, d इज इक्वल टू -4 आ गया। मुझे लगता है ये वही क्वेश्चन है जो पहले किया था 14th वन, यस वही क्वेश्चन है मुझे लगता है। चलो देखते हैं, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है 0, ए कितना है 120 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ -4, -4 है क्या, यस -4 है। 120 इधर गया -120 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये 331, एन इज इक्वल टू 31 आ गया। हाँ वही क्वेश्चन है मुझे लगता है, मतलब 0 जो है वो 31st टर्म है, तो पहली वाली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी। देयरफॉर देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयरफॉर
A32 समझने की कोशिश करो इस पार्ट को। A32 इज अ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू यू नो जस्ट राइट दैट, वी हैव टू फाइंड दैट कि कौन सी टर्म है। नाउ दैट वी हैव टू नो। तो A32 हम लोग फाइंड करते हैं। A32 इज इक्वल टू A+31D। आपको पता है ये एक कम होता है ना। A कितना है 120, राइट, प्लस 31 इंटू डी कितना है -4। तो कितना आता है देखते हैं, 120 माइनस होगा ना, तो 4 124, तो आ गया -4। तो -4 ही आपका क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। -4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आ गया है ना, इजंट इट। ओके, लेकिन कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं लेकिन ज़ीरो टर्म ही नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 52 49, कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्लोज करते इसको, ये आ गया और ये आ गया 49 सो ऑन। ठीक है, बस दैट्स इट, छोड़ देते हैं। इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करो, ऐसे मैंने बोला। ठीक है, अभी देखते हैं। ज़ीरो हमें लेना है, लेट ज़ीरो बी द टर्म। तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए प्लस मतलब 52 प्लस n-1 इंटू डी, 49 माइनस 2 52 3 -3। तो अगर मैंने 52 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया -52 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो -52 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। देखो अभी इसको सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस हो जाएगा ऑफकोर्स। 3 1 3, 3 1 3, व्हाट इज लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 7 21, 1 10, 3 3 9 एंड 3 33 इज इक्वल टू n-1। 1 को इधर शिफ्ट किया, 18.33 सॉरी नॉट 33, 18.33 इज माई नंबर। तो क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा है कि ज़ीरो टर्म ही नहीं है, लेकिन मुझे ज़ीरो थोड़ी फाइंड करना है। What I am supposed to find out? I am supposed to find out the first negative term. तो जीरो टर्म नहीं है या फिर जीरो उस एपी में नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें नेगेटिव टर्म नहीं होगी। नहीं, ऐसे तो नहीं है, isn't it? तो इसमें नेगेटिव टर्म है, लेकिन हाँ जीरो इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या बनता है, देखो जीरो टर्म जो है वो कौन से नंबर पे आती है ही नहीं, आई नो दैट। यहाँ पे एक 18th टर्म है, यहाँ पे एक 17th टर्म है, उसके बाद 19 टर्म है। ज़ीरो का n आ गया 18.33, इसका मतलब यहाँ पे कहीं तो ज़ीरो आएगा, ऐसे टर्म आता जाएगा और यहाँ पे कहीं तो ज़ीरो आएगा। ऑफकोर्स इट इज़ नॉट ए टर्म ऑफ द एपी, बट आपको ये पता चल गया क्या, मुझे ज़ीरो तो नहीं फाइंड करना है, हमें सिर्फ नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो वो कौन सी होगी, उसके बाद वाली टर्म, मतलब 19th टर्म इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट नेगेटिव टर्म। दैट मीन्स बस आपको A19 मतलब करना क्या है, आपको समझ में आ गया कि देखो whatever the answer you have got of zero, whether it is decimal, whether it is whatever it is, but next number of that, next integral value, next complete value is going to be your what, the first negative term. तो A19 is going to be your first negative term. तो A plus 18D it would be, तो A कितना है 52, दिखा देता हूँ मैं आपको, 18 इंटू -3, तो 52 माइनस 54, ये आ गया -2। तो -2 इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखा कितना मस्त है ना, मज़ेदार क्वेश्चन, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आज सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन हैं। ओके, मतलब हम लोग रीच कर रहे हैं एक लेवल तक। ओके, ये नेक्स्ट देखो, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है एंड बहुत ईजी भी है, यू डोंट हैव टू वरी। ओके, बहुत ईजी है। देखो, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, आई टेल यू। 10 7 4 डैश 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 -62, ये KP है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आई हैव टू फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। मतलब देखो, यहाँ से अगर 11th टर्म फाइंड करना होता तो हम लोग कैसे करते हैं, A11 फाइंड करते हैं, विच इज़ A + 10D। A पता है, D पता है, हम लोग फाइंड कर लेते हैं।
स्टार्टिंग से अगर होता तो। लेकिन पूछा क्या है, हमें पीछे से सॉल्व करना है, तो यहाँ से 11th टर्म फाइंड करना है, वहाँ से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, लेकिन देखते कैसे करना है। कुछ नहीं करना, एपी को रिवर्स कर दो, लेट द न्यू एपी बी, मतलब 62 -62 वुड बी योर फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर जान दो, लेकिन 4, 7 एंड 10 दिस इज गोइंग टू बी योर एपी। बराबर है कि नहीं है, ये तो एपी है, एपी है ही ना। अगर इस तरफ से देखो तो भी एपी है, उस तरफ से देखो तो भी एपी है, राइट। ये तो एपी है, ये हो गया मेरे न्यू एपी। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। अब यहाँ से अगर मैं 11th टर्म फाइंड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट मिलेगा, दैट्स इट, दैट्स इट। तो इसका ए क्या है, ए विल बी -62। आप बोलोगे अभी डी कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे A2 टर्म नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, दिस माइनस दिस कर दो। बेसिकली हमें कोई भी एपी में से टर्म लिया तो उसका नेक्स्ट टर्म माइनस द टर्म हमने किया तो आपको डी मिल जाएगा। तो 7 - 4 इज माई डी। कितना होगा 7 - 4, 3। देखो कितना इजी है, देखो 10 - 7 भी करोगे तो भी चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई भी टर्म ले लो ना एपी का, यू गेट योर डी, तो इट इज 3। अभी मुझे A11 फाइंड करना है इन दिस केस, तो A11 क्या आएगा, A + 10D, आपको तो पता ही है। A क्या है -62 + 10 × D, D क्या है 3, तो ये -62 + 30 एंड दैट वुड बी -32 इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड आंसर विच इज 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स द सेम क्वेश्चन आस्क्ड कि 11th टर्म फाइंड करो, लेकिन बस लास्ट वर्ड यूज करके उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया सम को और आपको रेपी को रिवर्स करने के लिए बोला है। सेम इज योर 18th क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं। आज का आपका टारगेट है 18th क्वेश्चन तक कंप्लीट करना। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम लेट मी टेल यू, मुझे लगता है कुछ 10th या फिर 11th क्वेश्चन से, 10th क्वेश्चन से 18th क्वेश्चन तक आज आपको कंप्लीट कर देना है। कैन यू कंप्लीट इट? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो। ओके।